हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हिमांशु श्रीवास्तव। पावर सिस्टम एनालिसिस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टेबिलिटी एनालिसिस में लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वेरियस टाइप ऑफ स्टेबिलिटीज़ को पढ़ा था, जिसमें हमने स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एंड डायनेमिक स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ टाइप के कांस्टेंट एम और एच टाइप कांस्टेंट्स पढ़े थे, जिनके हमने कुछ फार्मूलेस पढ़े थे। एम एंड एच कांस्टेंट्स को आज हम एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि फार्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस पर आज हम वन प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट उसी लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे स्विंग इक्वेशंस। तो बट उससे पहले डायनेमिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन में हम एम और एच के जो फॉर्मूले थे वो देख लेते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ जी ओमेगा एम स्क्वायर एंड हियर काइनेटिक एनर्जी की हम वैल्यू लिख देंगे तो हाफ एम ओमेगा एस, हियर काइनेटिक इज हाफ जी ओमेगा एम स्क्वायर। देन द एम कांस्टेंट इज गिवन बाय पी बाय अल्फा, where p is power in megawatt required to produce this unit angular acceleration. And in the same way, inertia constant h is defined as the stored kinetic energies at synchronous speed per voltmeter rating of the machine, where h is kinetic energy upon volt ampere rating of the machine. And then by rearranging the terms we get these types of different formulas. और यहाँ मैंने आपको बताया था कि इस कैपिटल एम की वैल्यूज़ सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर के 4 to 10 होती है, साइलेंट पोल अल्टरनेटर के 2 to 4, सिंक्रोनस कंपेंसेटर के लिए 1 2 एंड साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर के लिए हाफ से 2 तक होती है। देन दीज फार्मूलेज आर इम्पॉर्टेंट, काइंडली नोट डाउन ऑल दीज फार्मूलाज एंड देन let us move to swing equation. पावर सिस्टम में बेसिकली रोटेटिंग सिंक्रोनस मशीन की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हम स्विंग इक्वेशन का यूज़ करते हैं। स्विंग इक्वेशन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द सिंक्रोनस मशीन ड्यूरिंग ट्रांजिएंट्स। अब हियर इट इज़ अ सिंक्रोनस जनरेटर. It is a synchronous generator where input is mechanical power. This is mechanical torque, mechanical speed, and this is equivalent generated electrical torque, electromagnetic torque, and then this generator provide power PE. In the same way, for the case of the motor, here it takes the input from electrical supply PE and rotate at a speed Ts, mechanical power Tm, and output power is Pm. Here one more definition is swing equation is the relative motion of the rotor with respect to stator field as a function of time is called swing equation. This definition is given here. Relative motion of the rotor with respect to stator field as a function of time is called swing equation. Now the angular distance covered by the rotor is given as theta is equal to omega st plus delta, where delta is the load angle between the stator field axis and rotor field axis, and under normal operation it depends upon the loading of the machine. Then if we differentiate this equation, then we will get d2 theta e upon dt square is equal to, डबल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर, डबल बार डिफ्रेंशिएट करेंगे. इफ वी डिफ्रेंशिएट इट फर्स्ट टाइम देन वी गेट डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा प्लस डी डेल्टा बाई dt,
and if we next differentiate this equation, then we will get d to theta e by dt square is equal to d2 delta by dt square is equal to alpha, where alpha is angular acceleration of the rotor. Here if we neglect the damping or neglect the losses, then the accelerating torque for the case of generator, the accelerating torque is equal to mechanical torque minus electromagnetic torque. That means this mechanical torque Tm and this electromagnetic torque Ts T. The difference between the both these two is the accelerating torque Ta. T is equal to Tm minus T. Now put the value. Torque is equal to J d2 theta by dt square. Here we put this value as theta m. Actually electrical degree theta E is equal to P by 2 theta m. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोटर के मूवमेंट की. रोटर के मूवमेंट की दैट मीन्स रोटर जो मूवमेंट करेगा वो आपका मैकेनिकल एंगल में होगा. दैट्स वाई हियर वी हैज टेकन एज इट एज जे टी टू थीटा एम बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी एम बाई टी. नाउ वी कन्वर्ट दिस थीटा एम इंटू थीटा ई एंड पुट द इक्वेशन फ्रॉम हियर 2 by p theta e. So we get the equation 2 by p d2 theta e by dt square is equal to tm minus t. Then we put equation p is equal to omega t. P is equal to omega t or t is equal to p upon omega. Here we put Tm is equal to Pm upon Tm is equal to Pm upon omega and T is equal to P upon omega, and this omega goes to here. Then we get this equation, and then this omega m angular velocity is given in mechanical degree, so we convert it into electrical degree 2 by p omega e. Then we put this value here and we get the values that 10 to power minus 6 into j 2 by p का whole square omega s d2 theta e by dt square is equal to pm minus p into mega watt. Now this value j2 by p का whole square omega s into 10 to power minus 6 is equal to capital M, and it is given in the first slide of the lecture जहाँ हमने m and h constant की वैल्यू पढ़ी थी, वहाँ से ये हमें मिल रहा है. Then we get the equation m is equal to d2 theta e by dt square is equal to pm minus p, or from above, from this equation d2 theta e by dt square is equal to d2 delta by dt square. So we can write this equation as m2 d2 delta by dt square is equal to pm minus p, and this equation is known as a swing equation. It is a non-linear differential equation. Now if we put the values of m, then we get different type of equations, but this is the main equation, and this equation is known as swing equation. Then the curve between the torque angle and time is called swing curve. The curve between the torque angle and time is called swing curve. If delta is increased with time, then system is unstable. If delta is decreased with time after reaching any value, then system is stable. Here which the line is in red color is unstable, because delta is in has increasing nature with respect to time, but line with in green color is in stable condition, because here delta increase for certain value, then it
start decreasing with increasing time. So this is whole स्विंग इक्वेशन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. 10 नंबर में एक सीधे क्वेश्चन आता है, डिराइव द स्विंग इक्वेशन एंड आल्सो derive the swing equation and what is the swing curve. दिस टाइप का स्विंग कर्व बेसिकली एक पिछल्लू क्वेश्चन की तरह आ जाता है 2 नंबर में, और ये 8 नंबर में स्विंग इक्वेशन. तो स्विंग इक्वेशन को प्रूफ करने में कुछ भी नहीं है. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एस टी प्लस डेल्टा. एक बार डिफ्रेंशिएट किया, वैल्यूज पुट करी, बस सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स है और सीधे आपकी इक्वेशन पुट हो जाएगी. इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अ प्रॉब्लम. हियर दिस एग्जाम्पल इज टेकन फ्रॉम द अशफाक हुसैन बुक, example 19.4, and the question is a 2-pole 50 Hz 60 MVA turbo generator has a moment of inertia of 9 into 10 to power 3 kilogram meter square. The kinetic energy in megajoule at rated speed, the inertia constant m and h, and the inertia constant on 50 MVA base. तो सबसे पहले हम यहाँ पर, क्योंकि हमें जो भी दिया है क्वेश्चन में, वहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है और फ्रिक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ पोल्स दिए हैं. तो हमारे पास एक बहुत बेसिक फार्मूला है, n इज इक्वल टू 120 f/p. ये वैल्यू पुट करने पे हमें n यानी वेलोसिटी की वेलोसिटी मिल जाएगी इन आरपीएम में. देन फर्स्ट पार्ट है काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन मेगा जूल. काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन मेगा जूल इज गिवन बाय इक्वेशन हाफ जे ओमेगा स्क्वायर. अब ये जो इक्वेशंस हैं ये पीछे सब लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ से. हाफ जे ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πn/60. तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, हमको आंसर जाएगा 444 मेगा जूल. देन सेकेंड में इनर्शिया कांस्टेंट m एंड h निकालना था. हमने अभी पीछे फार्मूला पढ़ा था, h इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन मेगा जूल अपॉन MVA रेटिंग. देन काइनेटिक एनर्जी स्टोर हम निकाल चुके हैं 444, एंड MVA रेटिंग इसकी दी हुई है 60 MVA. वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा h का. देन इसी तरह कैपिटल M की वैल्यू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी स्टोर इन मेगा जूल अपॉन 180 f. वैल्यूज पुट कर देंगे, आ जाएगा. देन थर्ड पार्ट है पर यूनिट इनर्शिया कांस्टेंट. हमने इनर्शिया निकाल लिया कैपिटल M इनर्शिया, तो पर यूनिट इनर्शिया कांस्टेंट हो जाएगा कैपिटल M अपॉन बेस MVA, और ये आ जाएगी पर यूनिट इनर्शिया कांस्टेंट. तो पर यूनिट इनर्शिया कांस्टेंट मेनली पहला इनर्शिया कांस्टेंट किसको हम मानते हैं, इस कैपिटल M को. ओके, अब यहीं पे एक चीज़ और याद रखिएगा, वो मैं नोट्स में दे दूँगा. लेकिन अगर 2 मशीन एक साथ पैरेलल में रोटेट कर रही हैं तो उनका, और पहली मशीन का इनर्शिया कांस्टेंट m1 है, दूसरी मशीन का इनर्शिया कांस्टेंट m2 है, तो उनका इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट होगा m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 अपॉन m1 प्लस m2. ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा. अगर 2 मशीन पैरेलल में कनेक्टेड हैं और मूव कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं, तो उनका और फर्स्ट मशीन का इनर्शिया कांस्टेंट है m1, सेकंड मशीन का इनर्शिया कांस्टेंट है m2, तो उनका इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, तो इसके साथ, इस न्यूमेरिकल के साथ आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेबिलिटी में ही थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे और फिर हम 5th यूनिट की तरफ मूव कर जाएंगे. 5th यूनिट में मैंने आपको एक लेक्चर दे ही चुका हूँ लाइटनिंग पे, तो उसके आगे फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे. तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. ओके, थैंक यू.